Okay. So अभी तक we had practiced the position reports, and there we have seen the radio communication failure includes position report, as well as we have seen the deviation. ठीक है, और rerouting भी हमने देखा था, right? कि how to go for a rerouting plan. Today we'll have a look on, ठीक है, we'll have a look on rerouting when you are under RCF. ठीक है, हमने कल दो चीज देखा था अलग अलग, दैट इज रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर, डेविएशन एंड रीरूटिंग. टुडे we will mix these two topics and we'll have a look on how to plan a deviation when you are under RCF. Are you getting it? अब दोनों चीज को मिक्स कर रहे हैं कि how to plan a deviation when you are under RCF. So let's take the example of yesterday's map only. ठीक है, चार्ट वही लेंगे and situation also, they just take let's say we are at this blue dot. Look at the right side of the chart. Is my screen visible now? Yes, sir. So this blue dot, this is a blue and red dot, like 20 nautical mile to Dubox is a situation where you are under RCF. Okay, the condition is you are under RCF. क्वेश्चन में कई बार कैसा रहेगा एग्जाम में कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे आरसीएफ का कॉल प्रैक्टिस करवा लेगा एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखेगा subsequent to previous question. Subsequent to previous question means कि previous question में जो कंडीशन है वो अभी भी कंटिन्यू है, यानी you are under RCF. Subsequent to previous question, you have informed about bad weather over Dubox. You are 20 nautical mile to Dubox. देखो ऐसा रहेगा क्वेश्चन. क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत इजी है. सेकेंड क्वेश्चन में था कि यू आर अंडर आरसीएफ, यानी आपका कम्युनिकेशन फेल है. थर्ड क्वेश्चन क्या दे दिया? सबसिक्वेंट टू प्रीवियस क्वेश्चन, यानी आरसीएफ अभी भी है. ऐड क्या हो गया? यू हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट बैड वेदर ओवर ड्यूबॉक्स और यू आर एट 20 नॉटिकल माइल टू ड्यूबॉक्स. यानी जब आप ड्यूबॉक्स पहुंचने में 20 नॉटिकल माइल दूर हो तब आपको पता चला कि मौसम खराब है, और प्रीवियस क्वेश्चन में आरसीएफ था, तो अभी भी आप आरसीएफ के अंदर में हो. ठीक है, तो अभी दोनों कंडीशन को हमने मिक्स कर दिया. तो नाउ जस्ट हैव अ लुक हाउ दिस कॉल कैन गो. ठीक है, कंडीशन को देखो, आरसीएफ प्लस डेविएशन, ये बनता है एक सिचुएशन दैट इज नोन एज डेविएशन एट ऑन. ठीक है, नोट करना, डेविएशन एट ऑन. नाउ द प्रोटोकॉल सेज any kind of deviation you want to do in air that shall be approved by ATC, you shall take prior approval of any deviation. Doesn't mean whether it is descent, doesn't mean whether this is climb or anything. You will plan for a prior approval. लेकिन इस केस में आप अप्रूवल कैसे लोगे? आपका तो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल है, और डेविएशन भी जरूरी है क्योंकि आगे मौसम खराब है. यू कैन नॉट इंटर इनटू द turbulent weather. So you are planning for deviation at on. How deviation at on can be planned? Just have a look. RCF plus deviation, okay, that will make deviation at on, and deviation at on is a pan situation. Okay, why you are deviating at on? Because we have pan situation, otherwise will not be allowed to enter, will not be allowed to deviate. तो जब भी खुद से डेविएट करना पड़े, दैट इज अ पैन सिचुएशन. हाउ द कॉल में गो? जस्ट हैव अ लुक. पैन 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 पैन, ऑल एयरक्राफ्ट ऑल एयरक्राफ्ट. देखो
हमने इस बार मुंबई कंट्रोल को कॉल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको पहले ही पता है आरसीएफ है, तो मुंबई कंट्रोल को कॉल करके क्या फायदा। तो किसको कॉल दो? जो रास्ते में एयरक्राफ्ट हैं, जिनको अपनी जान बचानी है। ठीक है, मीन्स वी डू नॉट वांट एन एक्सीडेंट विद यू। तो जब भी डेविएशन एट ऑन होगा, दिस विल बी एन अनाउंसमेंट टू ऑल एयरक्राफ्ट, या फिर ऑल स्टेशंस। ठीक है, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे। ऑल स्टेशंस इन द विसिनिटी ऑफ, ठीक है, in the vicinity of jukebox. Whom you are calling? I am calling that we are under pan to all aircraft in the vicinity of jukebox. अपने पोजीशन के आसपास जो कोई एयरक्राफ्ट है, them I am calling. क्या कह रहे हो? Yes. Akasa Air 798, Boeing 737, IFR, Mumbai to Nagpur. Current position on flight level 350, goal 450, radial 073, DME 20, inbound due box. Time now 1045. Received bad weather warning over due box. Now mention deviating at on. Due negative contact with ATC and bad weather on route. आप क्यों खुद से डेविएट कर रहे हो भाई? Because I have negative contact with ATC and bad weather on route. That's why I am deviating. My current position is this. Deviating 30 nautical mile right of goal 450 and will fly parallel on deviated track. All exterior lights on. Keep a lookout. Akasa Air 798. देखो कितना सिंपल कॉल है, वेरी इजी। वी आर गिविंग अ पैन कॉशन टू ऑल एयरक्राफ्ट। जितने भी एयरक्राफ्ट ड्यू बॉक्स के आसपास फ्लाई कर रहे हैं, पे योर अटेंशन। क्या? वी आर अकाशा एयर 789 जो कि मुंबई से नागपुर जा रहे हैं अंडर IFR. Our current position is flight level 350. We are on goal 450, radial 073, and we are 20 DME inbound due box. The time now is 1045. We are receiving bad weather over due box. So deviating at on due negative contact with ATC and bad weather on route. हम खुद से डेविएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद एटीसी, एटीसी के साथ हम कॉन्टैक्ट में नहीं है, प्लस बैड वेदर भी है रास्ते में। तो कितना डेविएट कर रहे हैं? डेविएटिंग 30 nautical mile right of goal 450 एंड फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक। हम ऐसा फ्लाई करेंगे 30 nautical mile right and fly parallel on deviated track.
all exterior lights on. Keep a lookout. Akasa Air 791, 798. आसपास जो एयरक्राफ्ट घूम रहे हो ध्यान देना। करंट पोजीशन मेरा ये रहा, सारे लाइट्स हमारे ऑन हैं, नजर रखो, मैं डेविएट कर रहा हूं खुद से। इज दिस क्लियर? समझ में आया कि रिजॉइन नहीं करेंगे फिर से, पहले जो प्लान में था वो नहीं बोलेगा? हाँ बताता हूँ। नाउ रिजॉइन जब आप करोगे, इट इटसेल्फ अ डेविएशन अगेन, ठीक है। आप जो पैरेलल फ्लाई कर रहे हो, ठीक है, यानी आपने डेविएट किया, वेरी गुड, और इस टाइम आपने खुद से डेविएट किया बिकॉज एटीसी कांटेक्ट में नहीं था। जब आप रीजॉइन करने के लिए जाओगे, अगेन इट इज ए डेविएशन, तो वेट फॉर द एटीसी टू कम इन कांटेक्ट। बार बार डेविएशन एट ऑन नहीं, बार बार रूल नहीं तोड़ सकते। पैरेलल फ्लाई करो और जब नजदीक पहुंच जाओगे तो डायरेक्ट फ्लाई कर लेना। गेटिंग इट? सपोज आप रीजॉइन कर जाओगे तो आपका रिवाइज एस्टिमेट हो गया 1045 एट गोल्फ 450, यानी 10:45 पे आप रीजॉइन कर रहे हो, बट पीछे से कोई एयरक्राफ्ट जो कि 15 मिनट के डिले से आ रहा था, दे मे बी वेटिंग हियर। आपने जो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम किया, पीछे वाला एयरक्राफ्ट टाइम मेकअप करके यहाँ पहुंच गया, तो देयर मे बी अ केस ऑफ एक्सीडेंट। तो बार बार डेविएशन एट ऑन नहीं करना है। दैट्स व्हाई इन दिस कॉल वी हैड नॉट रीजॉइन, बट इट्स गुड कि आपने अटेंशन दिया कि रीजॉइन भी तो करते हैं। व्हाट द पॉइंट? रिमेंबर जब हम डेविएशन प्लान करते थे, देयर वी आर आस्किंग टू थिंग्स, रिक्वेस्ट परमिशन फॉर डेविएशन एंड रीजॉइनिंग क्लियरेंस, मींस दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो हम एक ही बार डेविएशन कर सकते हैं खुद से, बार बार अगर रूल तोड़ोगे तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव नॉट प्लान्ड फॉर रीजॉइनिंग। यस, इफ टाइम परमिट्स, अगर आगे जाकर मुझे रीजॉइन करना पड़े, अगेन वील गिव अ कॉल फॉर ऑल एयरक्राफ्ट एंड देन वील रीजॉइन, लेकिन एक बार में एक ही काम कर ले। क्लियर? Have you noted the answer in your notebook? Yes, sir. Yeah. So this was the case when you had to deviate at on and you were under RCF. Now, अभी क्वेश्चन आपके वाले पे आते हैं, आपने जो रीजॉइन प्लान किया ना उसी पे आते हैं। अभी क्या है? You are on deviated track, ATC back in contact, यानी जब आपने खुद से डेविएट कर लिया फिर ATC बैक इन कॉन्टैक्ट। अब क्या? यानी आपका कम्युनिकेशन, लेकिन अभी आप डेविएटेड ट्रैक पे हो, तो सबसे पहले अपना करंट पोजीशन रिपोर्ट करोगे कि यू आर एट डेविएटेड ट्रैक, प्लस रीजॉइनिंग आपको करना था ना, तो रीजॉइनिंग के लिए पूछो। देन हाउ दैट कॉल में गो, जस्ट हैव अ लुक। नागपुर कंट्रोल, Akasa Air 798 on 123.9 Boeing 737 IFR Mumbai to Nagpur. Current position on, अब देखो करंट पोजीशन ऑन डेविएटेड ट्रैक, बताओगे ना इसको कि हमने खुद से डेविएट किया सर। करंट पोजीशन ऑन डेविएटेड ट्रैक, ट्रैक का शॉर्ट फॉर्म TCK। करंट पोजीशन ऑन डेविएटेड ट्रैक क्या किया था? करंट पोजीशन ऑन डेविएटेड ट्रैक 30 nautical mile right of Golf 450, flight level 350, रेडियल 080। देखो ये है 073। नाउ वी आर एज्यूमिंग कि वी आर समवेयर एट अनदर रेडियल, तो 073 के आसपास कोई बोल दो, इसमें कैलकुलेशन में कोई ज्यादा इशू नहीं है। दिस वन इज 073
So you can plan 080, 07. इसके आपको बोल दो hypothetical. Time now 1100. इसमें कैलकुलेट करने का मेजरमेंट आपका है ट्रैक 30 नॉटिकल माइल, लेवल 350 आपने नहीं चेंज किया. ओके, रेडियल 0 अलावा को रेडियल बोल दो. Till now it is clear? Yes, no, anything? Is it clear till now? सर करंट पोजीशन के बाद आवाज से ब्रेक हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आया. The same again. Is you are on deviated track. आप deviated track पे हो. So जब आपने डेविएट किया था उस टाइम पे एटीसी कांटेक्ट में नहीं था, पर एटीसी बैक इन कांटेक्ट आफ्टर सम टाइम. तो आप उसको बताओगे ना कि वी आर ऑन डेविएटेड ट्रैक. तो करेंट पोजीशन ऑन डेविएटेड ट्रैक 30 नॉटिकल माइल राइट ऑफ गोल 450. दिस इज गोल 450. इसके 30 नॉटिकल माइल राइट आप फ्लाई कर रहे हो. फ्लाइट लेवल 350. इट इज योर फीट. आपने चेंज नहीं किया. रेडियल 080. इस रूट के अलावा कोई भी एक हाइपोथेटिकल रेडियल बोल दो, चलेगा इस रूट के आसपास. तो रेडियल 080. टाइम नाउ 1100. डिस्टेंस व्हाई? बिकॉज ऑन डेविएटेड ट्रैक आई हैव नथिंग टू टेक रेफरेंस विद. ठीक है. सो वी हैव रिपोर्टेड टू डीजीसीए कि वी आर ऑन डेविएटेड ट्रैक. नाउ अब क्या चाहते हो? वुड लाइक टू rejoin goal 450. करेक्शन. इसके पहले आप बताओगे अपना क्यों आपने डेविएट किया था. ठीक है, करंट पोजीशन तो आपने बता दिया. हैड डेविएटेड एट ऑन, उससे डेविएट किया था आपने. व्हाई? ड्यू negative contact with ATC, bad weather on route. क्यों डेविएट किया था एटीसी को आप बताओगे ना कि करंट पोजीशन आप डेविएटेड ट्रैक पे. क्यों डेविएटेड ट्रैक पे? खुद से डेविएट किया था सर. क्यों किए थे खुद से डेविएट? नेगेटिव कांटेक्ट विद एटीसी एंड बैड वेदर ऑन. दो चीज हो गया था सर. एक तो एटीसी से बात प्लस रास्ते में मौसम खराब था. सो वी आर 4 डे. Sir, current screen not visible, sir. Estimating goal 450 1130. Revised ETA Nagpur 1200. Air 798. समझे कॉल को? लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम. क्वेश्चन इज कि आप डेविएटेड ट्रैक पे हो और एटीसी बैक इन कांटेक्ट. एटीसी से आपकी बात हो गई तो बताना पड़ेगा ना क्या कि करेंट पोजीशन ऑन डेविएटेड ट्रैक. क्या है डेविएटेड ट्रैक? 30 नॉटिकल माइल राइट ऑफ गोल 450.
flight level 350, radial 080, and time now is 1100. Had deviated at on, क्योंकि ये थे कुछ deviate भैया, due negative contact with ATC and bad weather en route. अब क्या चाहते हो? Would like to rejoin goal 450 at 100 nautical mile inbound नागपुर. नागपुर से 100 nautical mile पहले मैं गोल 450 को ज्वाइन करूंगा. तो estimating goal 450 at 1130 and revised ETA Nagpur is 12. Hope this is clear to you. Is that clear? Lima kilo. Is that clear to you now? Yes, sir. See, things are very simple. You just need to think practically. बहुत simple चीजें हैं. पायलट क्या क्या सोचेगा, क्या क्या बोलेगा, उसी को बस लिख देना है. लिखने का तरीका आपको शुरू से ही बताया जा रहा है कि how to write in a good format, and whatever the pilot may think, you just need to write it here. That's all. ठीक है. कई बार बोलते बोलते कुछ पैरामीटर अप डाउन हो जाते हैं. लाइक मैं जैसे करंट पोजीशन के बाद ये वाला पोर्शन बताना भूल रहा था. ठीक है. देन आई रिकॉल कि हमको तो पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, व्हाई डेविएटिंग एट ऑन. देन मैं जो बोल रहा था उसको करेक्ट करके, उसको कैंसिल करके फिर से वापस आके रिपोर्ट किया. सो दीज आर द लिबर्टीज. अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर को जब आप आंसर कर रहे हो एंड समवेयर आपको लगा कि फॉर्मेट थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है, तो जो पहले बोल रहा है उसको कैंसिल करके, ठीक है, मीन्स उसको करेक्शन में कैंसिल करके दोबारा से बोल लो. या फिर आरटी के एग्जाम में कोई भी सेगमेंट का ऑर्डर जैसा कुछ नहीं होता है. आप चाहो तो ये वाला चीज पहले बोल लो, पोजीशन रिपोर्ट को बाद में बोलो. इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है. So in whatever manner you like to give a call, you can give. ठीक है. Things are in front of you. बस आपके कॉल में वो कंटेंट होना चाहिए. क्या क्या? सबसे पहले एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि आप हो कौन. दूसरा, आपके कॉल में पोजीशन होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो. तीसरा, सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन, क्या हो गया था या क्या हो गया है. ठीक है. देन योर एक्शन प्लान, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्हाट डू यू वांट. If these 4 things are available in your call will looks great. ठीक है. तो आपके कॉल में ये चारों पैरामीटर होने चाहिए. आइडेंटिफिकेशन, योर करंट पोजीशन, व्हाट इज द सिचुएशन, डिस्क्राइब द सिचुएशन, एंड व्हाट इज योर एक्शन प्लान, क्या करना चाहते हो आप एज अ पायलट. नीचे करके contact. When ATC back in contact after a deviation, you were able to make the call, right? All these things were a plan of deviation only. Done? Now I am going to open one topic, that is RVSM. Okay, that is important for the part 1 as well as the same is important for the part 2 as well. Okay, so वो टॉपिक का नाम है RVSM, reduced vertical separation minimum. In part 2, examiner may ask you what do you mean by RVSM, and they may also ask describe RVSM, what is it. Okay, so just have a look. Something is known as RVSM. RVSM means reduced vertical separation minimum. So if you are saying that this is the reduced vertical separation minimum, then somebody will ask, then what was the full? If this is the reduced, what was the full? अगर आप बोलोगे this is half glass of water, then you need to say na, what was the full glass of water.
Similarly, this is the reduced vertical separation minimum. Then what was the full? The complete was earlier conventional vertical separation minimum, CVSM. ठीक है, conventional vertical separation minimum. Later it has been changed to reduced vertical separation minimum. कम कर दिया गया इसको. ठीक है. Now just we'll have a look on requirement and its approval. Maintain the aircraft vertically separated. आप सबने वेक टर्बुलेंस का एग्जांपल देखा था, where Airbus 380 has flipped the Challenger 604 aircraft. So two aircraft shall have vertically separated to each other. ठीक है. कितना? Earlier it was a rule. ठीक है. Earlier it was a rule. Now also in non-RVSM flight zone, it is a rule. Two aircraft shall be at least 2000 feet vertically separated to each other. दो एयरक्राफ्ट कम से कम 2000 फीट का वर्टिकल सेपरेशन मेंटेन करेंगे. This is the scenario earlier, right? So any aircraft which were maintaining a 2000 feet separation when they are flying opposite to each other, तो कम से कम 2000 feet का separation minimum maintain करना was mandatory. So if two aircrafts are flying from 29,000 feet to 41,000 feet under RVSM, two non-directional aircraft may have at least 1,000 feet of vertical separation, and two same directional aircraft can maintain up to 2,000 feet of separation. ठीक है. Non-directional aircraft 1000 feet, same direction 2000 feet. जस्ट हाफ ऑफ इट, जो कन्वेंशनल का था उसका आधा. अगर दो एयरक्राफ्ट सेम डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं, दे विल मेंटेन अ 2000 फीट सेपरेशन, एंड इन CVSM it was 4000 feet. RVSM, if two aircrafts are flying opposite to each other, they will maintain 1000 feet separation. In CVSM it was 2000 feet separation. तो जो कन्वेंशनल था उसी को रिड्यूस कर दिया गया बाय हाफ, आधा कर दिया गया. नाउ 29,000 फीट से 41,000 फीट तक के फ्लाइंग जोन को बोलते हैं RVSM फ्लाइंग जोन, रिड्यूस्ड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमम फ्लाइंग जोन. अगर आप 29,000 फीट से 41,000 फीट के बीच में फ्लाई करना चाहते हो तो आपका एयरक्राफ्ट RVSM अप्रूव्ड होना चाहिए. अब रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी RVSM की? ठीक है. ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको वर्टिकल सेपरेशन 4000 फीट मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था. फिर आप बोलोगे सर जब वर्टिकल 4000 फीट मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था तो व्हाई ओनली दिस एनवेलप, इसके ऊपर नीचे भी तो एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, उनका क्यों नहीं 2000 किया गया? व्हाई ओनली 29,000 टू 41,000? उनका तो आपने नॉन RVSM में छोड़ दिया है, उसका तो 4000 फीट मेंटेन करेगा. एंड व्हाई ओनली 29,000 फीट टू 41,000 फीट इज RVSM,
ऐसा क्यों, क्या रिक्वायरमेंट आन पड़ी? करना ही था, पूरा कर देते। व्हाट हैपेंड, ट्रैफिक जो इंक्रीज हुआ, दैट वाज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन। आज आप इंडिया में जितना भी टेक्नोलॉजी देख रहे हो, फ्रॉम योर मोबाइल फोन टू मिसाइल टू एयरक्राफ्ट टू एनीथिंग, ये जितना भी इंडिया में टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रहा है, और वर्ल्ड लेवल पे जितने भी आइटम कॉमर्शियल हैं, मतलब जो खरीदे और बेचे जा रहे हैं, एक टाइम पे ये सारा कुछ कॉन्फिडेंशियल था। कॉन्फिडेंशियल मतलब सब कुछ गोपनीय तरीके से छिपाया हुआ था, पब्लिक नहीं था ये सब कुछ। क्यों? इट वाज एन एरा ऑफ, I know I was on mute because of network issue. I can understand. Where was I? कि अभी के टाइम पे आप जितने भी कॉमर्शियल चीजों को देख रहे हो, ठीक है, जितना भी कॉमर्शियलाइजेशन आइटम आप देख रहे हो, एम आई ऑडिबल परफेक्टली नाउ? यस सर। So post World War, after 20 years period, पोस्ट वर्ल्ड वॉर हर चीज कॉमर्शियल हो गया था। उससे पहले हर एक एडवांस टेक्नोलॉजी डिफेंस के पास था। एयरक्राफ्ट का पूरा पूरा टेक्नोलॉजी रशिया और यूएसए के बीच में शेयर्ड था, ठीक है, पूरा का पूरा। बाकी किसी देश के पास कुछ नहीं था, किसी देश के पास कुछ नहीं था। और जितना हम आज कर रहे हैं, रशिया एंड यूएसए 50 इयर्स बैक ये सब करके बैठ चुके थे। दैट्स वाई कभी कभी हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि भारत दूसरे देश से 50 साल पीछे है, 60 साल पीछे है। दिस इयर्स गैप इज सेइंग कि जो आप आज कर रहे हो, यूएसए डन दिस 50 इयर्स अगो। दैट्स व्हाई वी आर 50 इयर्स बैक देन यूएसए। आज हम मिसाइल बना रहे हैं, राइट? रशिया एंड यूएसए हैड मेड 60 इयर्स अगो। आज हम लोग मून पे जा रहे हैं, राइट? चांद पे जा रहे हैं, अपने मार्स पे जा रहे हैं, ठीक है। देयर वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर सम अदर प्लैनेट्स एंड ऑल, एक्सप्लोरेटरी मिशन, ठीक है। रशिया एंड यूएसए डन इन द एरा ऑफ 1960s। रिमेंबर कितने साल पीछे? हम लोग ऑलमोस्ट 60 इयर्स पीछे चल रहे हैं। तो एवरी टेक्नोलॉजी वाज विथ यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज अर्लियर। पोस्ट 90s जब बहुत सारे देशों में कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, ठीक है, मेनी ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्टेड द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी एज ए कॉमर्शियल। पहले भी एयरक्राफ्ट था लेकिन डिफेंस के पास था सिर्फ, या फिर आपकी कंट्री के कुछ ना कुछ ऑफिशियल्स उसको यूज करते थे, इक्का दुक्का राजा महाराजा यूज करते थे। 90s के बाद हर चीज को कॉमर्शियलाइज किया गया, खरीदने और बेचने की बात होने लगी कि सिर्फ एयरक्राफ्ट बना के फायदा नहीं है, एयरक्राफ्ट को बेचो, ठीक है, पब्लिक के लिए ओपन करो। मोबाइल टेक्नोलॉजी पहले भी था, पब्लिक के लिए ओपन करो। इंटरनेट पहले भी था, पब्लिक के लिए ओपन किया गया बाद में। सैटेलाइट्स पहले भी था, पब्लिक के लिए ओपन किया गया। जीपीएस पब्लिक के लिए ओपन किया गया, नहीं तो हर चीज था डिफेंस में। तो जब एयरक्राफ्ट पब्लिक सेक्टर में आना इंट्रोड्यूस हुआ, जब एयरक्राफ्ट पब्लिक के यूज के लिए आना शुरू हुआ, कॉमर्शियलाइजेशन हुआ एयरक्राफ्ट का, ठीक है, दैट टाइम मेनी ऑफ द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, बोइंग, एयरबस, ठीक है, एटीआरस, इन सब ने जो एयरक्राफ्ट बनाए, इनका एयरक्राफ्ट इसी फ्लाइंग जोन तक मैक्सिमम फ्लाई कर सकता है, ठीक है। सीलिंग हाइट ऑफ एयरबस आई थिंक मैक्सिमम 410 ओनली। आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, इफ एनीवन नोज दे कैन सर्च इन गूगल और एनीवेयर, ठीक है। बट
Remember about अपना Bombardier Global 5000, they can go up to 51,000. Am I right? 5 kilo यस सर। global 51,000 feet. तो जो पैसा वाला एयरक्राफ्ट है, जो चार्टर एयरक्राफ्ट हैं, जो प्राइवेट जेट्स हैं, इवन अपना बहुत छोटा सा एयरक्राफ्ट बीच 390, they can go up to 43-45,000 feet. ठीक है, तो जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट हैं, जो चार्टर सर्विसेज हैं, वो तो आगे निकल गए, 41 से भी ज्यादा फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन बोइंग, एयरबस, एटीआर ये सब लटक गया बीच में, और इन्हीं सब का नंबर ज्यादा है। ठीक है, बोइंग, एयरबस एंड एटीआर, दे आर ऑन ह्यूज नंबर्स, सो इनका फ्लाइंग जोन यही रह गया, नंबर इनके ज्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया में ज्यादा है, या फिर कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ज्यादा है, प्राइवेट महंगा हो जाता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट वार इज ह्यूज इन नंबर। इन सब का एयरक्राफ्ट का हाई परफॉर्मेंस इसी फ्लाइंग जोन में, इससे ऊपर जाएंगे फिर ज्यादा फ्यूल लगेगा, नीचे जाएंगे फिर ज्यादा फ्यूल लगेगा। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर हैज a limit of 28,000 feet, स्ट्रेटोस्फेयर 29,000 फीट से स्टार्ट हो गया। तो क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर में डस्ट पार्टिकल कम हो गए, एयर का रेसिस्टेंस कम हो गया, डैमेज ऑन एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर कम हो गया। तो प्राइवेट को तो दिक्कत नहीं है, 10 साल एयरक्राफ्ट उड़ा के बेच देगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर वाले को एयरक्राफ्ट 20 ईयर्स चलाने हैं, 25 ईयर्स चलाने हैं, तो वो चाहेंगे कि उनके एयरक्राफ्ट कम से कम डैमेज हो, उसके लिए वो अपना एयरक्राफ्ट इसी फ्लाइंग जोन में फ्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग इट? समझ रहे हो डिफरेंस? इसी सेक्शन में क्यों मारामारी हो रही इतनी? क्योंकि मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी, एयरक्राफ्ट हेल्थ इंप्रूव, ज्यादा दिन चलेगा, स्ट्रक्चरल का डैमेज कम हो जाएगा। ठीक है, एयर रेसिस्टेंस कम है, ड्रैग कम होगा, तो कम फ्यूल पे ज्यादा स्पीड भागोगे। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इन द फेवर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम 29,000 feet to 41,000 feet. Am I clear to all the factors? सारा फैक्टर समझ में आए कि इसी सेक्शन में क्यों मारामारी हो रही है? Why not above or below? समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर आप स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर जाओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका एयरक्राफ्ट का हेल्थ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो हर चीज एक एयरक्राफ्ट को इसी फ्लाइंग जोन में सुटेबल बनाती है फ्लाई करने के लिए। डन? सो इसी सेक्शन में ज्यादा मारामारी हो रही थी, तो इसी का वर्टिकल सेपरेशन रिड्यूस कर दिया गया। जो आप 4,000 फ्लाई कर रहे थे, अब 2,000 फ्लाई करो if you are a same directional aircraft, and 1,000 फ्लाई करो if you are a non directional aircraft। तो कम से कम 1,000 फीट मेंटेन करो। अब आती है बात, अगर आपके एयरक्राफ्ट को आरवीएसएम का के अंदर फ्लाई करना है, या फिर आपके एयरक्राफ्ट को आरवीएसएम एयर स्पेस क्रॉस भी करना है, इधर इसके अंदर फ्लाई करो या इसको क्रॉस करो, आपका एयरक्राफ्ट आरवीएसएम अप्रूव होना चाहिए। The things I am using RVSM approved। ठीक है, अप्रूव्ड मींस आपको कोई ना कोई अप्रूवल देगा। जितने भी एयरक्राफ्ट अभी के टाइम पे बन रहे हैं, इफ दैट इज अ कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, ठीक है, देन दे आर आरवीएसएम कैपेबल, वो आरवीएसएम में फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी डजंट गिव अप्रूवल। आप कैपेबल हो, ओके, आप एक इंजीनियर बनने के लायक हो, ओके, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं मिला तो आप इंजीनियर नहीं हो, राइट? सिमिलरली you are capable to fly under RVSM, but you need approval। कौन देगा अप्रूवल? आपका अथॉरिटी ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब होता है कंट्री इन अ लार्जर स्पेक्ट। अथॉरिटी ऑफ स्टेट, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ स्टेट कौन है इंडिया में? डीजीसीए। तो इंडिया में आरवीएसएम का अप्रूवल देगा डीजीसीए। डीजीसीए हैड इशूड गाइडलाइन फॉर अप्रूवल एंड ऑपरेशन अंडर आरवीएसएम। डीजीसीए ने गाइडलाइन दिया है कि कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा और कैसे ऑपरेट करोगे अंडर आरवीएसएम। कहाँ लिखा है? सीआर सेक्शन 8 सीरीज 8 सीरीज एस पार्ट 2, वहां पे उन्होंने लिखा है कि आरवीएसएम में कैसे ऑपरेट करोगे और आरवीएसएम का अप्रूवल आपको कैसे मिलेगा। ठीक है,
तो इन सारी चीजों को जो मैंने अभी बताया उसी को डिस्क्राइब किया गया है CR सेक्शन 8 सीरीज S पार्ट 2। अब आपके एयरक्राफ्ट को RVSM का अप्रूवल कैसे मिलेगा? आपके एयरक्राफ्ट में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट अल्टीट्यूड मेजरमेंट रिकॉर्डिंग एंड अलर्टिंग सिस्टम होने चाहिए। 2 इंडिपेंडेंट मींस पिटॉट स्टैटिक सिस्टम आपके 2 होने चाहिए। मेन चीज क्या है? अल्टीट्यूड हमारा किससे आता है? स्टैटिक सिस्टम से। तो आपके एयरक्राफ्ट में 2 इंडिपेंडेंट अलग अलग, अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा उससे प्रभावित नहीं हो, अलग अलग स्टैटिक सिस्टम होने चाहिए। तो इसके लिए एयरक्राफ्ट ने क्या किया? जिसके जिसके एयरक्राफ्ट में पिटॉट ट्यूब में ही स्टैटिक सोर्स लगे हुए हैं उसने 2 पेयर दे दिया पिटॉट स्टैटिक सिस्टम का। ठीक है, 2 पेयर, 2 पेयर। ग्लोबल में 2 पेयर है, राइट? लिमा किलो किलो यस सर। 2 पेयर है, 2 अलग अलग दे दिया। ठीक है, फिर जिसके पास पैसा था वो तो 4 दे दिया सिस्टम। ठीक है, 4 स्टैटिक सोर्स, यानी 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम। 2 पेयर मिलके एक पिटॉट स्टैटिक सिस्टम बनता है, सॉरी सिंगल पेयर मिलके 1 पिटॉट स्टैटिक सिस्टम। तो 2 पिटॉट स्टैटिक सिस्टम बिकेम 2 इंडिपेंडेंट, 2 अलग अलग 4 पिटॉट ट्यूब। फिर आए कुछ सस्ते ऑपरेटर, लिगेसी। ठीक है, लिगेसी में 3 है, एक पेयर और एक सेपरेट। एम आई राइट? लिमा किलो किलो यस सर। 2 पिटॉट स्टैटिक सिस्टम का एक कनेक्शन, एक इंडिपेंडेंट पिटॉट सिस्टम का एक कनेक्शन, तो 3 दे दिया। एक क्रॉस कपल्ड, एक खाली। हमको मेन क्या टारगेट करना है? 2 अलग अलग होने चाहिए। और भी दूसरे ऑपरेटर आए, किंग एयर। ठीक है, किंग एयर सीरीज, उसने क्या किया? पिटॉट को सेम ही रहने दिया, पिटॉट 2 ही है। ओके, डिमांड क्या है? अल्टीट्यूड मेजरमेंट, यानी आपके पास स्टैटिक सिस्टम अलग अलग होने चाहिए। 4 स्टैटिक सोर्स दे दिए, 2 अलग अलग स्टैटिक सोर्स। ये भी RVSM में प्रूफ कैपेबल हो गया। इज दिस क्लियर? लिमा किलो किलो यस सर। remember in 200 static system behind the door, 4 are there, 2 each side, right? So it is all about technology driven, आपको कैसे कैपेबल होना है। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आप बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हो, 4 दे दूंगा, पैसेंजर्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम पैसा लगाना है, 3 दे दो, क्योंकि हमको बस रेगुलेशंस को मीट करवाना है। उसके अलावा गरीब ऑपरेटर, सॉरी, कम पैसे वाला जहाज है, गरीब तो कोई नहीं होता है जिसके पास जहाज होता है, कम पैसे वाला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, स्टैटिक सोर्स को इंक्रीज कर दिया, पिटॉट को सेम रहने दिया। ठीक है, कुल मिला के आपको क्या अचीव करना है? 2 इंडिपेंडेंट अल्टीट्यूड मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड अलर्टिंग सिस्टम, प्लस ऑटोमेटिक अल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम। ये कौन करता है? ऑटो पायलट। ये आपको डेफिनेशन क्लियरली नहीं लिखा हुआ मिलेगा कहीं भी, लेकिन अल्टीट्यूड कंट्रोल में ऑटो पायलट अपने आप आ जाता है। तो अगर आपका एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट प्लस 2 अलग अलग अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम वाला एयरक्राफ्ट है, तभी वो RVSM कैपेबल हो सकता है। सो ऑटो पायलट प्लस 2 सेपरेट अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा, आपके एयरक्राफ्ट में सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार होने चाहिए। कौन सा वाला? ट्रांसपोंडर मॉड एस होना चाहिए आपके एयरक्राफ्ट में। ठीक है, मॉड एस या मॉड A/C। अब देखो, सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार में ट्रांसपोंडर के 3 मोड, A, C, S। मॉड ए में एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन रहता था, मॉड सी में अल्टीट्यूड डेटा रहता था, बीच में एयरक्राफ्ट में A/C आने लगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, अल्टीट्यूड भी मिल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन भी मिल जाएगा। नाउअडेज ऑल कम्स विथ मॉड एस, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, अल्टीट्यूड, फ्लाइट प्लानिंग, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, पूरा डिटेल रहेगा मॉड एस में। सो अगर आपका एयरक्राफ्ट RVSM में अप्रूव होना चाहता है तो कम से कम मॉड सी एंड अबव, ठीक है,
मॉड सी एंड अबव ट्रांसपोंडर होने चाहिए। मॉड सी रहे, A/C रहे, या मॉड एस रहे। सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार आपके एयरक्राफ्ट में है, तभी आपको आरवीएसएम का अप्रूवल मिलेगा। उसके अलावा आपके एयरक्राफ्ट में ACAS और TCAS दोनों एक ही चीज है, ठीक है। पेरेंट नेम है एयरबोर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ठीक है। एयरबोर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, उसके अंदर में जो डेवलप हुआ उसको कहा जाता है TCAS, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। दैट्स ऑल, ठीक है। सो आपके एयरक्राफ्ट में TCAS 2 होना चाहिए, TCAS 1 से काम नहीं चलेगा। तो TCAS 2 ट्रांसपोंडर मोड AC और C और S, और उसके अलावा ऑटो पायलट प्लस अल्टीट्यूड कंट्रोल में 2 इंडिपेंडेंट अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम होने चाहिए। अगर ये सब आपके एयरक्राफ्ट में है, तभी आपका एयरक्राफ्ट आरवीएसएम कैपेबल माना जाएगा। अभी भी अप्रूवल नहीं मिला, अभी भी ये आपकी कैपेबिलिटी भी है। उसके बाद क्या आया कि आपका क्रू आरवीएसएम ट्रेंड होना चाहिए। क्रू में कौन कौन से आ गए? पायलट और इंजीनियर्स। पायलट को आरवीएसएम की ट्रेनिंग होनी चाहिए और इंजीनियर्स को आरवीएसएम की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये सब लेके पहुंचोगे डीजीसीए के पास, तब जाके वो आपको आरवीएसएम का अप्रूवल देगा। मैं क्लियर नाउ? सो कैपेबिलिटी इज ए डिफरेंट थिंग। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने तो कैपेबिलिटी बना दी, आपका पायलट ट्रेंड है कि नहीं, आपका इंजीनियर ट्रेंड है कि नहीं, ये सब लेके पहुंचोगे तब जाके आपको अप्रूवल मिलेगा आरवीएसएम का। ठीक है, सो फार सो गुड टू अंडरस्टैंड, समझ में आया? आरवीएसएम लेंथी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम लोग मेंटेनेंस में ट्रेनिंग देते हैं आरवीएसएम की। स्पेशल ऑपरेशंस का ट्रेनिंग हुआ है लिमन किलो किलो? हाउ मेनी डेज ट्रेनिंग अंडरगोन? इंडक्शन कितने दिन का हुआ? नहीं ये कवर हुआ है टॉपिक सर, आरवीएसएम वाला कवर इंडक्शन है ना? 2 इयर्स में होता वही है। आरवीएसएम, यस यस, आरवीएसएम स्पेशल ऑपरेशंस में ही आता होगा, हाँ। ठीक है। तो ये सब डिमांड है कि आपके क्रू में दोनों आ गए, फ्लाइट क्रू और ग्राउंड क्रू दोनों। सो दोनों को ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आपको डीजीसीए अप्रूवल देगा। क्यों ये फ्लाई जोन इंपॉर्टेंट है? ठीक है, क्या है ऐसा इस फ्लाइंग जोन में कि सब लोग इधर ही मर रहे हैं सॉरी सॉरी फॉर माय वर्ड्स। क्या है ऐसा कि सब लोग इधर ही आके फ्लाई करना चाह रहे हैं? यू नो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फ्यूल बचाना है, पैसा बचाना है, एयरक्राफ्ट का हेल्थ इंप्रूव करना है, ज्यादा दिन तक उड़ना है, ये वाला फ्लाइंग जोन। तो सबको इसी में फ्लाई करना है, इसलिए ट्रैफिक बढ़ गया। तो जब ट्रैफिक बढ़ा तो डिमांड आई कि भैया सेपरेशन कम करो, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसने भी कंडीशन लगा दिया, ठीक है हम सेपरेशन कम कर देंगे, तुम ये सारी चीजें लेके आओ, ऑटो पायलट लाओ, TCAS 2 लाओ, ट्रांसपोंडर सेकेंड वर्जन का लाओ, ठीक है, और अलग अलग इंडिपेंडेंट मेजरमेंट सिस्टम लाओ, हम दे देंगे अप्रूवल, ठीक है। सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ आरवीएसएम अप्रूवल। अब क्या हुआ? आप आरवीएसएम अप्रूव्ड फ्लाइंग जोन में फ्लाई कर रहे हो, अगर किसी भी रीजन से इन सारे कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन नन कंप्लाई हो जाता है, ठीक है, कंटिंजेंसीज, कॉन्टिंजेंसी क्रिएट हुआ। कॉन्टिंजेंसी मतलब कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर आया, ठीक है, आरवीएसएम अप्रूवल आपका इमीडिएट सस्पेंड हो जाता है, ऑटोमेटिक आपको मानना होगा कि हम आरवीएसएम अनअप्रूव्ड हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको फोन करके डीजीसी बताएगा कि आपका आरवीएसएम अनअप्रूव्ड हो गया, नो। अगर किसी भी कंडीशंस में जो जिस जिस चीज को लेके आपको आरवीएसएम का अप्रूवल मिला था, अगर उन सब चीज में से कोई भी एक कंडीशन नॉन कंप्लाई हुआ तो आरवीएसएम अनअप्रूव्ड माना जाएगा। अब हवा में फ्लाई करते करते पायलट का ट्रेनिंग तो एक्सपायर होगा नहीं, ना ही इंजीनियर का ट्रेनिंग एक्सपायर होगा, ठीक है। फ्लाई करते करते ट्रेनिंग तो एक्सपायर होगा नहीं किसी का, पहले ही ग्राउंड पे चेक कर लिया जाएगा, ट्रेनिंग नहीं है तो उसको आरवीएसएम में भेजा ही नहीं जाएगा। दूसरा, ट्रेनिंग एक्सपायर हो नहीं सकता, तो क्या होगा?
रास्ते में कोई ना कोई इक्विपमेंट फेल हो जाएंगे, ठीक है, इक्विपमेंट फेल हो जाएंगे। कौन कौन से इक्विपमेंट फेल होंगे तो प्रॉब्लम होगा? अगर आपका दो पेयर, हमने पढ़ा था ना अभी कि अल्टीट्यूड मेजरमेंट का दो पेयर होने चाहिए, दोनों में से कोई भी एक पेयर फेल हुआ तो आप आरवीएसएम फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों अल्टीट्यूड में से, अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम में से कोई भी एक अल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम फेल हुआ, आप फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लॉस ऑफ रिडंडेंसी ऑफ अल्टीमेटरी सिस्टम, रिडंडेंसी मतलब होता है फेल सेफ, यानी आपके अल्टीमेटरी सिस्टम का रिडंडेंसी फेल हो गया, यानी दो आपके पास इक्विपमेंट थे, एक फेल हो गया, आरवीएसएम अनअप्रूव्ड। फेलियर ऑफ ऑटोमेटिक अल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम मींस ऑटो पायलट, ऑटो पायलट फेल, खेला खत्म, आरवीएसएम अनअप्रूव्ड। लॉस ऑफ थ्रस्ट, आप सडन अल्टीट्यूड डिसेंड करने लग जाते हो, आपका ऑटो पायलट भी उस टाइम कंट्रोल नहीं कर पाता है, आरवीएसएम अनअप्रूव्ड। कोई भी इक्विपमेंट फेल हुआ जिसके कारण आप अपना करंट फ्लाइट लेवल मेंटेन नहीं कर सकते हो, आरवीएसएम अनअप्रूव्ड। ट्रांसपॉन्डर फेल, आरवीएसएम अनअप्रूव्ड। टीकैस अनऑपरेशनल, आरवीएसएम अनअप्रूव्ड। तो कंडीशन क्या है कि अगर आपका आरवीएसएम नॉन कंप्लाई होता है किसी भी रीजन से, तो तुरंत आरवीएसएम एयरस्पेस से बाहर निकलो। क्या इसी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी पार्ट 2 में आपसे पूरा रामायण पूछेगा कि आरवीएसएम क्या होता है, कैसे अप्रूवल मिलता है, क्या क्या चाहिए। पार्ट 1 में आपसे क्या पूछेगा कि अगर आरवीएसएम एयरस्पेस में फ्लाई करते हुए आपके साथ कुछ भी इक्विपमेंट फेल हो गया तो आपका क्या एग्जिट प्लान है, बाहर कैसे निकलोगे आरवीएसएम से, हम लोग उसी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं क्लियर सो फार। तो अगर आपका कोई भी इक्विपमेंट फेल होता है तो आरवीएसएम छोड़ के तुरंत भागो, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नाउ समथिंग विल अंडरस्टैंड एज सेमी सर्कुलर रूल, ठीक है। लगता है मैं पुराना स्लाइड यूज कर रहा हूं, आई हैव द अट्रैक्टिव वंस, ठीक है, ओके। सो समथिंग इज नोन एज सेमी सर्कुलर रूल। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का आधा, ठीक है। हाफ ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल रूल। हाँ, ये वाला थोड़ा अच्छा है ना। अच्छा, ये रेसिप्रोकल ऑफ रन है। सेमी सर्कुलर रूल क्या है? सेमी सर्कुलर रूल, जस्ट हैव अ लुक। आधा सर्कल, किसका आधा? ग्लोब को हमने मान लिया एक सर्कल, पूरे अर्थ को हमने मान लिया एक सर्कल। अब अगर कोई भी एयरक्राफ्ट, देखो, इज द barking of dog coming as a noise? आ रहा है क्या? इज दैट अ सीरियस नॉइज? नो सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, देन यू कैन कोऑपरेट प्लीज। अरे जोर से भागने लगा, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है यू कैन कोऑपरेट, अदरवाइज यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन कि सर नॉइज आ रहा है, ठीक है। सो समथिंग इज नोन एज सेमी सर्कुलर रूल। अब क्या है? अर्थ को दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर दो। ड्यूरिंग द प्री फ्लाइट, सॉरी ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ फ्लाइट, जब आप फ्लाइट प्लान करते हो उस टाइम पे, टू प्रिवेंट हेड टू हेड कोलिजन, मकसद क्या था कि दो एयरक्राफ्ट एक दूसरे के सामने से न टकरा जाए, इसके लिए लाया गया सेमी सर्कुलर रूल। क्या लाया गया कि आप जिस क्रूजिंग अल्टीट्यूड पे फ्लाई करोगे, यानी जिस रूट पे आप क्रूज करना चाहते हो, सपोज गोल्फ 450 इज अ रूट जो आपका मैक्सिमम फेज ऑफ फ्लाइट होगा। क्रूज क्या होता है? मैक्सिमम टाइम spent by aircraft on a straight and level flight, that is known as cruise. Remember the definition जो हमने बताया था? स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में जब आप अपने फ्लाइट का मैक्सिमम पोर्शन कवर करते हो उसको बोला जाता है क्रूजिंग अल्टीट्यूड या क्रूज फेज।
तो जिस रूट पे आप क्रूज कर रहे हो, अगर उस रूट का रेडियल 0 से लेके 179 के बीच में है तो इसको बोला जाता है ईस्टर्ली फ्लाइंग। देखो ये ईस्ट डायरेक्शन में है ना, ईस्टर्ली फ्लाइंग। एंड अगर आपके रूट का रेडियल 181 से 359 के बीच में है, सो दैट इज नोन एज वेस्टर्ली फ्लाइंग, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लाइंग। फिर आप बोलोगे सर आपने 0 और 180 को क्यों छोड़ दिया? 0 and 180 is not any direction. These are the poles. North pole, South pole. So when you are either flying easterly or when you are either flying westerly, we need to plan for altitudes. कैसे? अब देखो, अगर आप एक ईस्टर्ली फ्लाइंग रेडियल में हो तो आप जो क्रूजिंग अल्टीट्यूड प्लान करोगे वो ऑड होने चाहिए। कहां से कहां तक? 29 से 41 के बीच में ही ध्यान देना है। अगर आप एक स्टर्लिंग फ्लाइंग जोन में हो तो आपका अल्टीट्यूड होना चाहिए 29,000 फीट फ्लाइट लेवल, ठीक है, 29,000 फीट, 31,000 फीट, 33,000 फीट, 35,000 फीट एंड सो ऑन। ठीक है, चलो मेंशन ही कर देता हूँ, 37, 39, 41। आरवीएसएम के अंदर की बात कर रहा हूँ, 43 से कोई लेना देना नहीं। अगर आप एक वेस्टर्ली फ्लाइंग कर रहे हो तो आपका अल्टीट्यूड होना चाहिए 30,000 फीट, 32,000 फीट, 34,000 फीट, 36,000 फीट, 38 एंड 40,000 फीट। अब आप बोलोगे सर आप ये ऑड इवन तो बता दिए, लेकिन ये भी इवन नंबर ही है, सबके लास्ट में 0 है, तो ये भी तो इवन ही है। ये कौन सा ऑड हो गया? 29,000 itself है इवन नंबर, this is not a odd number. So pay attention about this one. 29, 31, 33, 35. These are the odd numbers, right? So when you are planning, जब आप एक प्लान करते हो कि आप एक वेस्टर्ली फ्लाइंग करोगे, यानी आपके क्रूजिंग अल्टीट्यूड वाले रूट का रेडियल 1 से 179 के बीच में है, तो आप एक ऑड फ्लाइट लेवल चूज करो, 33 चूज करो, 35 चूज करो प्लानिंग का। अगर आपका रेडियल 240 डिग्री है तो आप एक इवन फ्लाइट रेडियल चूज करो, 32 चूज करो, 34 चूज करो, ये आपके प्लानिंग का पार्ट है। अगर किसी रीजन से आपका प्लानिंग मिस हो गया या फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि रेडियल तो है 273 और अल्टीट्यूड है 35,000 फीट, तो हम एग्जाम के क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि ये देखो गलत प्लान कर लिया इसने। नो, ये हमारा राइट है। जैसे हम लोग याद है विस्की 13 नॉर्थ एंड विस्की 13 साउथ में पढ़ रहे थे कि जब आप प्लान करते हो उस टाइम पे आप पूरा रूल फॉलो करोगे, लेकिन अगर एग्जाम में रूल फॉलो नहीं किया गया तो हम उसको क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि आपने रूल क्यों नहीं फॉलो किया। ठीक है, हेयर ऑल्सो जब आप प्लान करते हो तब आप ऐसा प्लान करना, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा कंडीशन मिल गया कि डायरेक्शन है वेस्ट का और फ्लाइट लेवल आ गया ऑड, तो एग्जामिनर को पीछे पलट के गरियाना नहीं है कि तुमने गलत प्लान कर दिया भाई। ठीक है, एग्जामिनर से लड़ाई नहीं करनी है कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप। तो एग्जाम में जैसा है हम वैसा ही प्लान करेंगे। अब आप बोलोगे सर इसको पढ़ाने का क्या मतलब है, सेमी सर्कुलर रूल का क्या मकसद निकला, क्या डिफरेंस आया? कुछ नहीं। अगर आपसे सेमी सर्कुलर रूल पूछा जाए पार्ट 2 में, तो आप ये फ्लाइट प्लानिंग की टेक्निक बताओ कि सर ऐसा प्लान करना चाहिए। उससे होगा क्या? उससे आपका एयरक्राफ्ट हेड टू हेड कोलिजन नहीं करेगा, सामने से नहीं टकराएगा। वैसे भी नहीं टकराएगा क्योंकि अगर आप में टकास 2 है तो ऑटोमेटिक एक एयरक्राफ्ट ऊपर निकल जाएगा, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट नीचे चला जाएगा। रिजोल्यूशन एडवाइजरी। ठीक है, बट हम और कॉशियस होकर चलेंगे कि ऐसी नौबत ही नहीं आए। क्या पता अगर टेकास एक बार को हेल्प नहीं कर पाए, तो इसके लिए सेमी सर्कुलर रूल बनाया गया। लेकिन ये सब फ्लाइट प्लानिंग तक ही सीमित है। अगर एक बार फ्लाइट प्लान बन गया तो जैसा बना हमको लेके चलना पड़ेगा। तो बोलोगे सर इसको पढ़ा के फिर क्या फायदा? इसको पढ़ाने का मतलब यही है, जब आप आरवीएसएम एरोस्पेस से एग्जिट प्लान करते हो
तो अगर आप एक ऑड अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे थे, लेट्स से 35,000 फीट पे फ्लाई कर रहे थे, तो जब आप एग्जिट मांगोगे तो ऑड अल्टीट्यूड ही डिमांड करो। 27 डिमांड करो, 25 डिमांड करो, 23 डिमांड करो। और जब आप एक इवन अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे थे, तो आपका एग्जिट प्लान में जो डिमांड करोगे 26,000 डिमांड करो, 24,000 डिमांड करो, 22,000 फिर डिमांड करो। समझ में आ रहा है सेमी सर्कुलर रूल का प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस क्या है? अगर आप एक ऑड अल्टीट्यूड पर थे इन आरवीएसएम, और अगर किसी भी रीजन से आरवीएसएम फेल हुआ, तो अगर आप इवन पे थे तो बाहर भी इवन अल्टीट्यूड पे ही जाने का ट्राई करो। अगर आप एक ऑड अल्टीट्यूड पे थे तो बाहर भी ऑड अल्टीट्यूड पे ही जाने का ट्रायल करो। माई क्लियर सो फार? यस सर। तो जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये इतना बड़ा टॉपिक जिसको समझने में आपको ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगा, जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ही इजी है। अब आप बोल सकते हो कि सर आप मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो, बाद में जाके गड्ढा में कूदा देते हो, पता चलता है 30-30 पैराग्राफ का आंसर आ रहा है। नो, ट्रस्ट मी, आरवीएसएम जितना कॉम्प्लेक्स समझने में है, उससे बहुत ज्यादा इजी इसका आंसर है। और ये मैं आपको फर्जी मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, आपको दिख जाएगा आगे। ठीक है, सो लेट्स से जस्ट हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन। क्या है व्यवस्था? सेम फ्लाइट प्लान मुंबई टू नागपुर उठाते हैं अपना, ठीक है। सेम 20 नॉटिकल माइल टू डी बॉक्स, कंडीशन सेम रहा, ठीक है। आरवीएसएम का क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक। 20 नॉटिकल माइल टू डी बॉक्स, यहीं पे मस्त फ्लाई कर रहे थे 35,000 फीट पे, अचानक स्टैंड बाय अल्टीमीटर फेल हो गया। तो क्वेश्चन में कम लाइक दिस, you are 20 nautical mile to Dubox. Your primary altimeter fails. कोई भी अल्टीमीटर फेल होगा, अनेबल आरवीएसएम तुरंत, क्योंकि दोनों के दोनों सर्विसेबल होने चाहिए। उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टिव स्टैंड बाय मोड। हैव यू रिमेंबर और हैव यू लिसन अर्लियर? समथिंग इज एक्टिव स्टैंड बाय मोड। इसका मतलब अगर आपके एयरक्राफ्ट में 3 सिस्टम है या 2 सिस्टम है, तो तीनों के तीनों ऑन रहेंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे। लेकिन तीनों का रोल कब पता चलेगा? जब कोई फेल हुआ। दो से समझते हैं, अगर आपके पास 2 सिस्टम है, दोनों के दोनों ऑन रहेंगे, अगर एक फेल होगा तो दूसरा अपने आप लीड रोल में आ जाएगा। लेकिन थ्रू आउट द जर्नी दोनों सिस्टम में पावर सप्लाई होना चाहिए, दोनों सिस्टम ऑन रहने चाहिए। स्टैंड बाय मोड में रहेगा मतलब ये एक्टिव रोल में नहीं रहेगा, लेकिन चालू रहेगा। जैसे ही पहला फेल, तुरंत ये लीडर बन गया, ठीक है। 3 सिस्टम है, ठीक है, तीनों की तीनों एक्टिव रहेंगे, ठीक है। अगर कोई 2 फेल हुआ या कोई 1 फेल हुआ, तो तीसरा अपने आप कमांड संभाल लेगा। इसको बोलते हैं एक्टिव स्टैंड बाय मोड, कि दोनों काम कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल सिस्टम है, लेकिन फिलहाल के लिए एक सिस्टम लीड कर रहा है। जब ये फेल करेगा, दूसरा अपने आप लीड कर लेगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टिव स्टैंड बाय मोड। क्लियर? नाउ देखो क्वेश्चन क्या है। You are 20 nautical mile to the box. Your primary altimeter fails. फेल हो गया। अब देखो फ्लाइट लेवल 350 है अपने फ्लाइट प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने ऑटोमेटिक मान लिया कि हम आरवीएसएम फ्लायर स्पेस के अंदर ही फ्लाई कर रहे हैं। तो जो हम फ्लाइट प्लान में क्रूजिंग अल्टीट्यूड मेंशन करते हैं ना, इफ दैट इज आरवीएसएम फ्लाई जोन, तो हमारा कभी भी आरवीएसएम फ्लाइंग ही रहेगा। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? क्रूजिंग अल्टीट्यूड है 35,000 फीट, मींस अपना क्रूज है आरवीएसएम के अंदर बाय डिफॉल्ट। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक है, नाउ जस्ट हैव अ लुक कि क्या हो जाएगा। आपका प्राइमरी अल्टीमीटर फेल मींस आप आरवीएसएम फेल, ठीक है। कैसे कॉल जाएगा?
Mumbai control Akasa Air 7908 on क्या है मुंबई कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी 125 डेसिमल लाइनर। देखो इसीलिए आप लोगों को हार्ड कॉपी रखने बोला, नहीं तो डिजिटली अगर चार्ट को एक्सेस करोगे कुछ ना कुछ छिप जाएगा। ठीक है, ऑन 125 डेसिमल लाइनर कौन हो भैया, क्या बात है, बोइंग 737 मुंबई टू नागपुर IFR, current position on flight level 350, goal 450, radial 073, 20 DME, inbound due box, time now 1040। ये हो गया पोजीशन रिपोर्ट। सारे क्वेश्चन में पोजीशन रिपोर्ट एक इनहेरेंट कॉल है, बिना पोजीशन रिपोर्ट के दाल नहीं गलेगी। अब मेन मुद्दे पे, एयरक्राफ्ट करेक्शन, अनेबल आरवीएसएम आपका फेल हो गया, ड्यू इक्विपमेंट, मार्क इट एज एन स्टैंडर्ड सेंटेंस। हमेशा आप बोलोगे ड्यू इक्विपमेंट, कभी भी ये नहीं बोलना है ड्यू प्राइमरी अल्टीमीटर फेल, ड्यू ट्रांसपॉन्डर फेल, ड्यू ये फेल, ड्यू वो फेल, नहीं। क्वेश्चन में कुछ भी रहे, आपका स्टैंडर्ड टॉपिक रहेगा अनेबल आरवीएसएम ड्यू इक्विपमेंट। ठीक है, क्यों? आरवीएसएम का अप्रूवल तीन चीजें से बनता था, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग प्लस अथॉरिटी का अप्रूवल। तो इस केस में क्या फेल हो रहा है, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग वैलिड है, अथॉरिटी अप्रूवल वैलिड है, इसीलिए आरवीएसएम ड्यू इक्विपमेंट, अनेबल आरवीएसएम ड्यू इक्विपमेंट। तो अब क्या चाहते हो, रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 270 फॉर फर्दर फ्लाइट, या फिर वुड लाइक टू डिसेंड फ्लाइट लेवल, अल्टरनेट में है फ्लाइट लेवल 270 फॉर फर्दर फ्लाइट, रिक्वेस्ट परमिशन, आकाशा एयर 798। देख रहा, वेरी सिंपल। मैंने बोला ना, जितना आरवीएसएम समझना लेंदी था, आरवीएसएम का कॉल उतना ही ज्यादा इजी। क्या किया, सिचुएशन एनालाइज किया, 35,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं, मतलब आरवीएसएम में फ्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन में क्या है कि प्राइमरी अल्टीमीटर फेल्स, मतलब हमारा आरवीएसएम अनेबल हो गया, तो अनेबल आरवीएसएम इक्विपमेंट। अब क्या चाहते हो, एग्जिट, तुरंत एग्जिट लो। तो अगर आप ऑड अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हो तो एग्जिट का अल्टीट्यूड ऑड, रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 270 फॉर फर्दर फ्लाइट, आकाशा एयर 798, या फिर would like to, लेंदी कॉल, would like to descend flight level 270 for further flight, request permission, Akasa Air 798। Clear to you now, everyone? पक्का? यस सर। ओके, देखा कितना सिंपल था आरवीएसएम का कॉल। So this was the case when your aircraft enable RVSM because of equipment. Am I clear so far? अब थोड़ा थोड़ा टफ करता जाऊंगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एवरी टाइम यू आर मिक्सिंग द कॉन्सेप्ट्स, दैट्स व्हाट एग्जामिनेशन आस्क। ठीक है, अभी देखो आरवीएसएम आपने पढ़ा, अब आरवीएसएम के कंडीशन क्या, जब आप आरवीएसएम में थे, ठीक है, जब आप आरवीएसएम में थे, एटीसी कॉन्टैक्ट में था, तो आपने एग्जिट प्लान मांग लिया। आपका आरवीएसएम कंडीशन जब है, ठीक है, जब आप आरवीएसएम में फ्लाई कर रहे हो, सपोज आरसीएफ कंडीशन है, एटीसी कॉन्टैक्ट में नहीं है, तब किससे एग्जिट मांगोगे? ठीक है, आरसीएफ प्लस अनेबल आरवीएसएम, सेम चीज, प्राइमरी अल्टीमीटर फेल, यूआर 20 नॉटिकल माइल टू डी बॉक्स,
मैं अभी सारा पैरामीटर हाइपोथेटिकल बोलूंगा, बस समझना क्या है। आरसीएफ प्लस अनेबल आरवीएसएम, प्राइमरी अल्टीमीटर फेल हुआ है, राइट। तो जस्ट हैव अ लुक हाउ दिस कॉल कैन गो। क्या करेंगे, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर। तो अब क्या है, हम इस अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं, राइट। लेट्स से दिस इज आवर एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये हमारा एयरक्राफ्ट है। ड्राइंग अच्छी बनी है मेरी, ठीक है। नाउ आरवीएसएम फेल हो गया। आप चाहते हो कि जब आप आरवीएसएम फेल हो जाता है, मेन चीज क्या रहता है कि आपका एयरक्राफ्ट किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे। सो आरसीएफ है, यानी आप एटीसी से बात कर नहीं सकते, लेकिन आप इस अल्टीट्यूड को मेंटेन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका आरवीएसएम फेल हो गया है। तो क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर अपनाओगे। क्या? अपने रूट से 15 नॉटिकल माइल बाएं या दाएं घिसक जाओ। और अल्टीट्यूड भी हमने पढ़ा था कि 500 फीट अप या डाउन कर सकते हैं, लेकिन आरवीएसएन के केस में 300 फीट लेना, 500 फीट नहीं लो। क्यों? सपोज दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, 1000 फीट। आपने भी 500 फीट लिया, किसी दूसरे ने भी 500 फीट ले लिया, फिर दोनों टकरा गए। तो जिससे बचने के लिए आपने डेविएशन लिया, वो फिर से क्रिएट हो गया। तो इसी के लिए 300 फीट रखो। तो क्या होगा, आप 300 फीट लिया, किसी दूसरे ने 300 फीट लिया, अगेन यू आर हैविंग अ 400 फीट सेपरेशन। Am I clear on this point? समझ में आ रहा है लिमा किलो किलो? यस सर। सो अंडर आरवीएसएम अगर आपका आरसीएफ है और आरवीएसएम भी डिसेबल हो गया, मतलब अनेबल हो गया किसी भी रीजन से, तब आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर। लेकिन उसमें अल्टीट्यूड को थोड़ा सा घटा के 300 फीट ले आना है। हाउ दिस कॉल कैन गो, जस्ट हैव अ लुक। आरवीएसएम है फेल, आरसीएफ है मतलब खुद से डेविएट कर रहे हो। खुद से डेविएट करना मींस डेविएशन एट ऑन, और डेविएशन एट ऑन मींस पैन पैन, ठीक है। डेविएशन एट ऑन मींस पैन पैन। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द कॉल हाउ दैट कैन गो। पैन 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 पैन, all aircraft in the vicinity of due box, ठीक है। इसको बोलने का एक रिदम बनाओ, पैन 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 पैन, all aircraft in the vicinity of due box, ठीक है। Akasa Air 798, Boeing 737, IFR Mumbai to Nagpur, ठीक है। Enable RVSM due equipment, ठीक है। Enable RVSM due equipment and negative contact with ATC, दोनों चीज। Deviating at on, करेक्शन। आप चाह रहे हो कि पहले करंट पोजीशन बता दो, तभी तो डेविएशन सबको समझ में आएगा। तो करेक्शन रहने देता हूं ताकि आप सीखोगे करेक्शन कैसे करते हैं। करेक्शन, करंट पोजीशन ऑन फ्लाइट लेवल 350, गोल 450, रेडियल 073, DME 20, inbound due box, टाइम नाउ 1030। क्या चाहते हो भैया, डेविएटिंग एट ऑन, टर्निंग राइट, या फिर करेक्शन, डेविएटिंग एट ऑन, टर्निंग राइट फॉर 15 नॉटिकल माइल, राइट टर्न ले रहा हूं 15 नॉटिकल माइल के लिए। एट 12 नॉटिकल माइल will climb 300 feet,
एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी नोट करो। विल क्लाइंब 300 feet, all exterior lights on, keep a lookout। आकाशा एयर 798, हमारे सारे बत्ती जले हुए हैं, ध्यान रखो। हमने क्या बोला कि जितने भी एयरक्राफ्ट ड्यूबॉक्स के आसपास हैं सब लोग ध्यान दें। वी आर आकाशा एयर 789er बोइंग 737 IFR नागपुर टू मुंबई, सॉरी मुंबई टू नागपुर। वी आर अनेबल RVSM due equipment and negative contact with ATC, दोनों कंडीशन। Our current position is flight level 350, Golf 450, radial 07320 DMA inbound DVOX, and the time is 1030. Now what? Now we are willing to deviate via on, खुद से deviate करूंगा, deviating at on, turning right for 15 nautical mile. At 12 nautical mile will climb 300 feet. यानी हमने ये जो डेविएशन प्लान किया, हम चाहते हैं कि रास्ते में ही जब 12वां नॉटिकल माइल रहे तो थोड़ा सा क्लाइंब भी कर जाऊं। यानी हमारा डेविएशन लेटरल प्लस वर्टिकल दोनों है, समझ में आ रहा है? आइदर यू कैन से एट 15 नॉटिकल माइल विल क्लाइंब 300 फीट। आप चाहो तो आराम से पहले लेटरल डेविएशन कर लो और लेटरल डेविएशन कंप्लीट होने के बाद वर्टिकल डेविएशन कर लेना, ठीक है, 300 फीट का। या फिर आप चाहते हो कि दोनों साथ साथ ही कर लो, जब 15 नॉटिकल माइल जा रहे हो दैट टाइम ओनली, ठीक है, when you are making a lateral deviation, that time only at 12th nautical mile you are little climbing as well। तो थोड़ा सा देखो कर्वेचर वाला पाथ बनेगा। टोटल डेविएशन 15 नॉटिकल माइल का ही हुआ, 12th वाले पे थोड़ा सा क्लाइंब भी हुआ। तो आप इन दोनों प्लान को यहाँ पे मिक्स कर सकते हो, या फिर एज पर योर प्लान, आप चाहो तो पूरा का पूरा पहले लेटरल डेविएशन कर लो 15 के 15, फिर आराम से क्लाइंब कर लेना। इट्स अप टू यू, ठीक है। सो डेविएटिंग एट ऑन, टर्निंग राइट फॉर 15 nautical mile, at 10 nautical mile or 12 nautical mile will climb, up arrow climb का है, will climb 300 feet, all exterior lights on, keep a lookout। Clear? Yes. So this is the call when you are under RCF and RVSM। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया? आपने नोट किया? और shall I Yes, give a time on the screen to note the call? Noted? noted, sir. Okay. So this is the call when you are under RCF and RVSM में घटना हो गया। फिर क्या कंडीशन आया? देखो कंडीशन पे कंडीशन आता जाएगा, नथिंग इज डिफरेंट। क्या है कंडीशन? आप RVSM अनेबल थे, यानी आपने अभी भी आप RVSM जोन में ही हो। आर यू लुकिंग एट द सीन? अगर आप बाहर कहीं थे और कुछ गड़बड़ी होती थी तो आप डेविएट करके बाहर चले जाते थे, लेकिन आप RCF में हो तो RVSM एयर स्पेस छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एग्जिट प्लान आपको मिला नहीं, एग्जिट का अप्रूवल आपको मिला नहीं, तो आप RVSM एयर स्पेस के अंदर में ही, ठीक है, RVSM एयर स्पेस के अंदर में ही थोड़ा सा डेविएट होके फ्लाई कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि RCF था, आपको एग्जिट प्लान का अप्रूवल नहीं मिला, तो आपने अंदर में ही थोड़ा सा डेविएट कर लिया। कितना डेविएट किया? एज पर स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर। नाउ द कंडीशन इज subsequent to the previous, या फिर you are on deviated track and ATC back in contact। देखो कंडीशन मिक्स कर दिया मैंने, ATC बैक इन कॉन्टैक्ट, ATC हो गया दोबारा से कॉन्टैक्ट में। आप कहां पे हो? डेविएटेड ट्रैक पे हो। डेविएटेड ट्रैक क्या है आपका? RVSM के अंदर ही है। So how that call can go? Call can go, just have a look। ATC back in contact, नोट करना, मुंबई कंट्रोल आकाशा एयर 798
on 123.9 Hz. This frequency may be wrong, मैं hypothetical बोल रहा हूँ. Boeing 737 IFR मुंबई टू नागपुर, ठीक है. Current position on deviated track. क्या बोलना है? Deviated track. क्या है deviated track? Flight level 353. क्यों बोला मैंने 353? बताओ लिमा किलो किलो. 300 फीट गेन किया था इन आरवीएसएम डेविएशन में, 300 राइट? हाँ yes sir. हाँ, तो फ्लाइट लेवल 353. फिर रूट का इंफॉर्मेशन 15 नॉटिकल माइल राइट ऑफ गोल 450, रेडियल 075. डीएमई नहीं आएगा डेविएटेड ट्रैक पे, डीएमई आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, या अगर आप सोचते हो कि कर पाओगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलो लिख दो. डीएमई 20 नॉटिकल माइल, करेक्शन, डीएमई 20 इनबाउंड ड्यू बॉक्स, वही था ना अपना कंडीशन. ड्यू बॉक्स 15 कर लो, 5 नॉटिकल माइल तो आगे बढ़ गए होंगे डेविएशन करने के बाद. तो डीएमई 15 इनबाउंड ड्यू बॉक्स. टाइम नाउ 1030. ये रहा आपका डेविएटेड ट्रैक का करंट पोजीशन. क्यों आप डेविएटेड ट्रैक पे हो? डेविएटेड एट ऑन. अब तो और सीरियस काम. एक तो आपने डेविएट किया, ऊपर से रिपोर्ट किया. क्यों डेविएटेड एट ऑन? ड्यू एयरक्राफ्ट अनेबल आरवीएसएम एंड नेगेटिव कॉन्टैक्ट विथ एटीसी. दोनों के दोनों कंडीशन थे कि एक तो हमारा एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम हो गया था कि वी आर अनेबल आरवीएसएम प्लस नेगेटिव कॉन्टैक्ट विथ एटीसी. These two situations made us to deviate at on. इन दोनों के कारण ही मैंने डेविएट किया खुद से. ओ अब क्या चाहते हो भैया? Would like to descend या फिर डाउन एरो, डिसेंड फ्लाइट लेवल क्या है? 35 से नीचे जाना है तो 270 फॉर फर्दर फ्लाइट्स. Akasa Air 798. Correction. Would like to descend to flight level 270 for further flight. Request permission. Akasa Air 798. ये हो गया एक टाइप का कॉल. दूसरे टाइप का कॉल सिंपल. Would like to वाला लैंग्वेज मत यूज करो, सीधा बोलो रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल 270 for further flight. Akasa Air 798. देखो कितना छोटा छोटा कॉल है ना इजी. Yes, no, anything? Is it good? Lima kilo, especially asking you. Yes sir. Okay. So it was the condition when ATC back in contact and RVSM yet not recovered. RVSM ठीक नहीं हुआ था. तो RVSM ठीक नहीं हुआ यानी आपको तुरंत एग्जिट प्लान चाहिए. आपने एग्जिट प्लान मांग लिया और एटीसी बैक हुआ था, इसलिए आपने एटीसी को रिपोर्ट भी किया कि भैया रिपोर्ट से डेविएट किया था. ठीक है, अब कंडीशन थोड़ा और चेंज. कंडीशन ये वाला चेंज करता हूं, इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाओ. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल. आरवीएसएम जितना लेंदी प्रोसेस समझने में है उतना ही छोटा इसका आंसर होता है. तो अभी जो हमने कंडीशन देखा, एटीसी बैक इन कॉन्टैक्ट एंड आरवीएसएम नॉट रिकवर्ड, तो आपने क्या कर लिया? एग्जिट प्लान मांग लिया भैया. ओके, अभी क्या है कि आरवीएसएम बैक इन कॉन्टैक्ट, सॉरी एटीसी बैक इन कॉन्टैक्ट और आरवीएसएम भी रिकवर्ड. तो कुछ नहीं, आप जो डेविएटेड ट्रैक पे थे वापस रिटर्न हो जाओ मेन ट्रैक पे. सिंपल. डेविएटेड ट्रैक पे क्यों थे?
क्योंकि आरवीएसएम अनेबल हो गया था, प्लस एटीसी भी कांटेक्ट में नहीं था। अभी एटीसी कांटेक्ट में आया, और अगर, ठीक है, दो केस, इफ एटीसी बैक इन कांटेक्ट और आरवीएसएम स्टिल नॉट रिकवर्ड, देन गो फॉर एग्जिट प्लान, बाहर निकलो। अगर एटीसी बैक इन कांटेक्ट और आरवीएसएम रिकवर, तो वापस मेन ट्रैक पे आ जाओ, सिंपल। करेंट पोजीशन ऑन फ्लाइट लेवल 353, 300 फीट का दिया था हमने, तो 353 15 nautical mile right of goal 450, that is our route, radial ये, DME ये, time now ये सब। अब had deviated at on aircraft enable RVSM view equipment and negative contact with ATC, ठीक है। अब पिछला केस क्या था कि RVSM still there, enable RVSM was still there, तो हमने एग्जिट मांग लिया। लेकिन इस केस में RVSM भी ठीक हो गया। तो रिमेंबर, जब हम लोग कैंसिल पैन पैन करते थे या कैंसिल मेडे करते थे तो क्या बोलते थे, नाउ एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन, एयरक्राफ्ट एबल टू रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन। हम रिज्यूम कर सकते हैं किस चीज को, अपने नॉर्मल नेविगेशन को। सो आई वुड लाइक टू रीज्वाइन गोल 450 ओवर ड्यू बॉक्स, जो भी कंडीशन है, रीज्वाइनिंग का एस्टिमेट दीजिए और परमिशन मांग लीजिए, रिक्वेस्ट रीज्वाइनिंग क्लियरेंस। क्लियर ऑन दिस टॉपिक? यस। सिंपल। एटीसी कांटेक्ट में आया, अच्छी बात है, रिपोर्ट करेंगे सबसे पहली चीज। अगर हमारा कंडीशन सॉल्व नहीं हुआ तो तुरंत एग्जिट प्लान लेंगे। अगर कंडीशन सॉल्व है तो रीजॉइनिंग का पूछ लेंगे। वेदर डेविएशन में हम लोग सेम करते थे, राइट। डेविएटेड ट्रैक पे हो, एटीसी कांटेक्ट में नहीं आया, तो बार बार अपने मन से डेविएट नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते हो। तो जब एटीसी कांटेक्ट में आया तो ज्वाइनिंग क्लियरेंस मांग लो, पूछ लो, ठीक है, डन। सो सेम थिंग इज देयर विद आरवीएसएम। डेविएशन एट ऑन टू अवॉइड बैड वेदर, ये हमने कल ही देख लिया था, राइट। रीरूटिंग भी हमने देख लिया था, when we are on ground and when we are on air, everything we have seen in yesterday's class. So till now whatever the topic I had covered, ठीक है, वो आपका पेज नंबर 26, ठीक है, जो आपको ड्राइव लिंक पे अपलोड किया गया है, लेक्चर नोट्स, ठीक है, या क्लास स्लाइड्स, उसके पेज नंबर 26 तक के सारे कंडीशन हमने पढ़ लिए हैं, राइट। पेज नंबर 26 तक के सारे पढ़ लिए हैं। आप लोग भी पेज नंबर 26 तक के सारे टॉपिक पे नजर डालो एंड लेट मी नो वेदर दे हैव रियली कवर्ड और नॉट। आपको सही में इन सारे टॉपिक्स की जानकारी है कि नहीं है, ठीक है। सो एज पर लेक्चर प्लान, जस्ट हैव अ लुक कि हाउ मेनी टॉपिक वी हैड कवर्ड। विल सी एज पर द लेक्चर प्लान वन बाय वन। We shall not deviate from our path as well, ठीक है, हम भी अपने पाथ से नहीं भटक सकते। So including today, this is 18th class I guess, ठीक है, lecture 18th, and in this 18th lecture हमने 17 lecture 17 तक के टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। Don't be worried, जैसा हमने कहा था कि आपको 20 क्लास देना पड़ेगा। लेक्चर 18th, 19th एंड 20th इतने सिंपल टॉपिक्स हैं कि अगर आपने अभी तक के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा तो ये तीनों क्लास का सिलेबस मैं एक दिन में खत्म कर दूंगा। आप बोलोगे सर ओवरडोज देके, नहीं, ओवरडोज भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर आपने अभी तक के सारे टॉपिक्स को एक्टिवली समझा, या फिर अभी तक मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर आपको एक्टिवली समझ में आ रहा है, तो ये तीनों टॉपिक एक दिन का काम है, उतना भी नहीं लगेगा। आधा ज्यादा चीज तो आप जानते होगे इसमें। सो विल सी वन बाय वन आफ्टर लेक्चर 10th। लेक्चर 10 तक के सारे कंडीशंस बहुत बेसिक और डेफिनेशन रखते थे। लेक्चर 10th के बाद कंडीशंस स्टार्ट हुए कि फ्लाइंग सिचुएशन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। तो वन बाय वन विल हैव अ लुक ऑन ऑल एंड प्लीज कंफर्म कि आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप आज ही बताओ, मैं कल उसको फिर से रिपीट कर दूंगा या अभी रिपीट करने की कोशिश करूंगा। पोजीशन रिपोर्ट हमने देख लिया, एयर रिपोर्ट, पायलट रिपोर्ट हमने देख लिया, जिसमें वोलमेट मेटेरियोलॉजिकल कंडीशन रिपोर्ट की जाती थी कि वेदर कितना है, टेम्परेचर कितना है, विंड्स का डायरेक्शन क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है।
टॉप ऑफ क्लाइंब, टॉप ऑफ डिसेंट हमने देखा, हमने सारे कॉल देखे विच आर इनिशियल पेज एंड इनिशियल फ्लाइट कॉल्स. एयर प्रॉक्स वी हैव सीन, position report we have seen extensively, radio communication failure we have seen, sector report we have not seen, we'll see tomorrow. ठीक है, कल देखेंगे. रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर का प्रोसीजर हमने देख लिया. फिर हमने देखा डेविएशन. ठीक है, डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर एंड वेदर डेविएशन प्रोसीजर. रीरूटिंग प्रोसीजर वी हैव सीन. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू RVSM, we had taken a 45 minutes lecture on RVSM itself. Then we have also seen semicircular rule. What if your aircraft unable to RVSM under because of equipment? When ATC back in contact, RVSM recovered तो क्या करेंगे? RVSM not recovered तो क्या करेंगे? ATC back in contact and you have already deviated at on, वो भी हमने देखा. ठीक है, so these are the things we have already seen as an example one by one. तो कल आज मीन्स लेक्चर 17th and 18th हमने जितने सारी चीजों को देखा, जस्ट समराइज इट अप. आपको बहुत सारे सिचुएशंस कॉल मिलेंगे. ठीक है, so tomorrow we'll have a look on sector request first. ठीक है, हम लोग सेक्टर रिक्वेस्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. बट आई थिंक बिफोर गोइंग अहेड टुमारो वी शुड हैव सम प्रैक्टिस. हम 2 दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं एंड आई कैन नॉट बेट ऑन इट. मैं प्रैक्टिस को कभी भी दाव पे नहीं खेलता. आप 2 अक्षर पर हो बट फुल तैयार रहो, वो मेरे लिए ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है. ज्यादा पढ़ के क्वेश्चन नंबर पहले में लटक जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं है. ठीक है, एंड आई एम सेइंग दिस क्लियरली. ठीक है, आई डोंट फील शाय ऑन दिस एंड आई आल्सो टेल यू डोंट फील प्रॉब्लम ऑन दिस. दिस इज कॉमन. दुनिया भर के टॉपिक पढ़ लिए, पहले क्वेश्चन पे लटक गए, खुद की भी बेइज्जती करवा लिए ना आप तो, कि इतना सब कुछ पढ़ा, पहले क्वेश्चन से हिलने नहीं दिया मुझे एग्जामिनर ने, क्या फायदा. तो जितना पढ़ो रेडी रहो. 2 क्वेश्चन आंसर करके आए, ठीक है, अगर आपको उसमें 40 मार्क्स मिल गए, इससे ज्यादा बड़ा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं है. ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन ही करूंगा, 60 मार्क्स आ गए, सोचो कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन. या फिर 17th भी अगर एक में मिला तो 51 मार्क्स, स्टिल यू आर ऑन पासिंग मार्क्स. सोचो कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगा. तो जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो. So tomorrow I'll go for practice first, then only move to another topics. मैं बार-बार प्रैक्टिस को, जब मैं प्रैक्टिस नहीं करवाता हूँ मुझे खुद बुरा लगता है, लेकिन ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, ड्यू टू द seeing your limitations, I had to move ahead. ठीक है, तो थोड़ा सा with deep you can say कि hard hurt I move ahead, लेकिन मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ as much as I can. And I also suggest कि you should do practice as much as you can. तो कल मैं पहले प्रैक्टिस करूंगा, देन आगे बढ़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए. टॉपिक नहीं बचे हैं ज्यादा, कुछ नहीं है पढ़ने को, जितना पढ़े हो उसी को अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, तो कल आप सब लोग प्रैक्टिस करके आइए, दिन में थोड़ा टाइम निकालिए, आधा 1 घंटे, जितने टॉपिक हमने पढ़ाए वो सब आप पढ़िए, रिवाइज करिए. कल थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे. ठीक है, शैल आई क्लोज दिस मीटिंग फॉर टुडे हियर ओनली रादर. आज भी आधा घंटा पहले छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, शैल आई क्लोज द मीटिंग हियर ओनली देन? Yes. Yes, no, anything? Yes, sir. So I'm closing this class here only. We'll see you tomorrow and we'll do some practice first, then move ahead. ठीक है, आपसे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है कि क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो कल पहले प्रैक्टिस करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे. चलो, गुड नाइट फॉर टुडे. आज भी खाली टाइम है, आप लोग प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो. डन? Done. Complete, sir. गुड नाइट.